Hello, very good evening. Welcome to my channel Law Buddy. It's Advocate Pooja Sharma, and today I want to tell you about the general exceptions. Chapter 3, General Exceptions from the section 14 to 44. Now, it was available in Indian Penal Code, Chapter 4, Section 76 to 106. But now it is mentioned in Section 14 to 44 and Chapter 3. Let's start. At first, let's understand what is the general exceptions. General exceptions means if the person is committing any kind of offense and comes under the criteria of general exception, so that person will not get any kind of sentence. Why? Because in the general exception there is a lack of mens rea, lack of guilty mind. We know very well that for commit any kind of offense there must be the presentation of both thing means mens rea and actus rea. Mens rea means guilty mind, actus rea means act done by physically. फाइन, अगर उसमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो वो ऑफेंस नहीं कहलाएगा. एंड जनरल एक्सेप्शंस, बेसिकली इन द जनरल एक्सेप्शंस देयर इज द एक्टस रिया बट देयर इज नॉट द मेंस रिया. सो लेट्स स्टार्ट. दैट्स व्हाई any kind of offense which come under the general exceptions, that means there is not the mens rea, there is not the guilty mind, so that person will not get the punishment. Now from section 14 I am going to start. Section 14 talk about the public servant. Section 14 talk about the public servant. If the public servant is bound to do his duty and during the discharging of his duty perhaps any kind of mistake of fact done by him, so this will come under the general exceptions. Section 15 talk about the judges. Section 15 talks about the judges. If the judges during the discharging of their duty has done any kind of mistake of fact, remember one thing, I am not telling mistake of law, I am telling mistake of fact and in good faith and during the discharging of the duty, so this will also become under the general exceptions. भाई गलती किसी से भी हो सकती है, ठीक है. Second thing is that section 16 talks about such staffs who have to obey the order of the court. For example, मान लीजिए जजेस ने जनरल एक्सेप्शंस के तहत गुड फेथ में अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करते हुए मिस्टेक ऑफ फैक्ट उनसे हो गई है, तो उनके द्वारा पास किए गए कोई भी ऑर्डर को उनके जो भी इन्फीरियर स्टाफ रहेंगे उनको तो मेंटेन करना ही होगा. सो सेक्शन 16 talk about those staffs of the court. Section 17 talks about the public person, private person. एक पब्लिक पर्सन नॉर्मल इंसान से भी गलती हो सकती है. फॉर एग्जांपल अगर बोलना चाहूँ, एक व्यक्ति है, वो कहीं से जा रहा है और उस जगह पे उसने आवाज़ सुनी, दो लोग झगड़ा कर रहे हैं. उस जगह पर जाकर उसने देखा कि सपोज़ दो लोग जिनको मैं बी और सी बोल करके यहाँ पर प्रेजेंट कर रही हूँ, उन लोगों ने देखा, मतलब ए ने देखा कि सी ने बी को मार रहा है या मार रहा है, मारा है या मार रहा है, और उसने बिना कुछ पूछे बिना कुछ सोचे उसने पुलिस को कॉल किया और सी को पुलिस के हैंडओवर कर दिया. बाद में उसे पता चला कि सी के सामने बी ने कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस ला दिए थे कि उसे अपने प्राइवेट डिफेंस के लिए उस पर हाथ चलाना पड़ा या उसको मारना पड़ा. तो दिस इज़ द मिस्टेक ऑफ फैक्ट इन गुड फेथ बाय दैट पर्सन. सो इट कम्स अंडर द सेक्शन 17 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता. सेक्शन 14, 15, 16, 17 completed. Section 18 talk about the accident. एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो. गलती और एक्सीडेंट किसी से भी हो सकता है. जैसे हम एक कुल्हाड़ी का ही एग्जांपल ले ले. फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जो हर शाम जंगल में जाता है लकड़ियाँ काटने, और उसी वक्त उसके पीछे से कोई गुज़र रहा हो, बहुत दबे पैरों से कुछ गुज़र रहा हो, और उसकी कुल्हाड़ी खुल जाती है और उस वक्त उसकी मौत हो जाती है उस कुल्हाड़ी के कारण. This will come under the accident, so it will also come under the general exceptions under section 18 of Bharatiya Nyaya Samhita.
Second thing is that section 19 rule of necessity. This is called rule of necessity also. बड़े harm को बचाने के लिए छोटा harm करना. For example, I would like to see that suppose कोई घर है, ठीक है, घर के अंदर में कुछ लोग फंसे हुए हैं, कुछ बच्चे फंसे हुए हैं या कुछ बूढ़े फंसे हुए हैं, और घर को बाहर से आग लगा दिया गया. जिन लोगों ने आग लगाया वो लोग वहाँ से जा चुके हैं. कोई है जिसे आवाज़ सुनाई दी, जो गया देखा, तो ऐसा सिचुएशन है कि अंदर में कुछ लोग फंसे हुए हैं और बाहर से आग लगी हुई है. उसने कुछ भी करके किसी भी तरह से उस घर को तोड़ा, उस घर की खिड़की को तोड़ा, कांच को तोड़ा, किसी तरह से वो अंदर जाने का ट्राई किया और अंदर गया और बचा के लाया. सो ये यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज़ द रूल ऑफ नेसेसिटी. रूल ऑफ नेसेसिटी मतलब अगर वो छोड़ देता, नहीं किसी का घर है, मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, ये तो आपका आ जाएगा मिस्चीफ, आपका, मैं नहीं तोड़ सकता. बट आपने तोड़ा. क्यों तोड़ा? बड़े हार्म को बचाने के लिए. अगर आप नहीं घर को तोड़ोगे, उसके अंदर नहीं जाओगे, तो उसके अंदर जो लोग फंसे हुए हैं आप उनको कैसे निकाल के लाओगे? तो दिस विल कम अंडर द रूल ऑफ नेसेसिटी. एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं, मान लीजिए कोई फ्लैट है, कोई अपार्टमेंट है, आग लग गई है, कोई बच्चा ऊपर में फंस गया है, तो उस बच्चे को बचाना है, पर सीढ़ी से जगह नहीं है, लिफ्ट के पास आग लगी हुई है, पूरी आग लगी हुई है, तो उसको ऊपर से इस तरह से फेंका कि नीचे से उसको सब लोग बचा सके. अब वो जो फेंका उसमें उसकी जान जा सकती है, ऐसा नहीं कि जान नहीं जा सकती है, जान जा सकती है. बट ये क्या हुआ, ये बड़े हार्म से बचने के लिए एक रिस्क लिया गया. ठीक है, दिस इज़ कॉल्ड रूल ऑफ नेसेसिटी. ज़रूरत पड़ने पर किसी तरह का कुछ ऐसा स्टेप लेना, कुछ ऑफेंस की तरफ मुड़ना, दैट इज़ कॉल्ड द रूल ऑफ नेसेसिटी. थर्ड थिंग इज दैट सेक्शन 20 एक्ट ऑफ चाइल्ड. डॉली इन कैपेक्स. डॉली इन कैपेक्स मीन्स 7 साल से कम उम्र की बच्ची. सच पर्सन हुज द एज इज लेस देन 7 years, they don't have any मेंसरिया. उनका मेंसरिया हो ही नहीं सकता. दे आर डॉली इन कैपेक्स. उनके हाथों से कोई भी ऑफेंस होता है ना, they will not get any kind of punishment. This will come under the general exceptions. Section 21 7 साल और 12 साल के बीच की बच्ची. उस जगह पर बच्चे का प्रेजेंस ऑफ माइंड देखा जाएगा, एंड दिस विल ऑल्सो कम अंडर द जनरल एक्सेप्शंस. वहाँ पर भी उन्हें सज़ा नहीं होगी. सेक्शन 22 अनसाउंड माइंड. वी नो वेरी वेल दैट अनसाउंड माइंड पर्सन डजंट हैव द माइंड. आई मीन टू से उन्हें ये पता नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है. दे हैव नो आइडिया, नो एनी नॉलेज दैट व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग. वहाँ पर मेंस रिया का सवाल ही नहीं उठता. सो दे विल ऑल्सो नॉट गेट एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट. इट विल कम अंडर द जनरल एक्सेप्शंस. सेक्शन 23 इंटॉक्सिकेटेड पर्सन बट विदाउट नॉलेज. अगर किसी व्यक्ति ने किसी को नशे की चीज़ दे दी है और उसमें उसके द्वारा किसी प्रकार का ऑफेंस हो गया हो, सो द पर्सन विल कम अंडर द जनरल एक्सेप्शंस. सेक्शन 24 टॉक्सिकेशन. इंटॉक्सिकेशन बट विथ नॉलेज. उसे पता है, that person who is taking any kind of drink or any kind of drug or anything, that person knows very well कि अगर वो इस चीज़ को लेगा अपने बॉडी में, सो वो अपने आपा से बाहर हो जाएगा, उसका दिमाग काम करना बंद कर देगा. उसके बाद अगर उससे किसी प्रकार का ऑफेंस होता है, सो दैट पर्सन विल बी लाइबल फॉर दैट ऑफेंस. ओके, सो रिमेंबर सेक्शन 23 intoxication without knowledge and section 24 intoxication with knowledge. So section 24 में आप बच नहीं सकते. Okay, but in section 23 when you have no any idea that someone has feed you the intoxicated thing, in that time
your case will come under the general exceptions. Section 25. It's talk about the sports basically. स्पोर्ट्स में जब भी लोग जाते हैं दे हैव टू साइन अ फॉर्म, दे हैव टू साइन सच टाइप ऑफ फॉर्म जिसमें एक एम्प्लॉयड मीनिंग की तरह से छिपा रहता है कि अगर इसमें आपके साथ अगर कुछ होता है या किसी तरह का एक्सीडेंट होता है आपके साथ, किसी तरह का चोट लगता है, तो उसके लिए कोई भी व्यक्ति वहाँ पर लाइबल नहीं होगा. दैट पर्सन विल बी नॉट लाइबल. आप किसी पर केस नहीं कर सकते. सो दिस विल कम अंडर द सेक्शन 25. Section 26 talks about the doctors but with consent. For example, किसी का ऑपरेशन करना है, डॉक्टर ने उनका कंसर्ट लिया, ऑपरेशन थिएटर में गए और अनलकीली अनफॉर्चुनेटली ऑपरेशन बिकम अनसक्सेसफुल, वो व्यक्ति मर गया. सो क्या हम डॉक्टर पर केस करेंगे? वी कांट डू दिस बिकॉज वहाँ पर ऑलरेडी डॉक्टर ने कंसर्ट ले रखा है. और सेकेंड थिंग इज़ डैट वहाँ पर इंटेंशन नहीं था मारने का. there is not the intention of kill that person. गलती हो सकती है और यहाँ पर आपका है this will come under the general exceptions but with consent. Section 26 with consent and section 30 without consent. Section 30 talks about without consent. For example, कोई ऐसी सिचुएशंस है जिसमें कंसर्ट लेने का टाइम ही नहीं है. डॉक्टर है, वो कहीं से जा रहा है, उसके सामने कोई पड़ा हुआ है जिसकी हालत ख़राब है, ज़ख्मी है, बेहोशी के हालत में है. वो डॉक्टर ने सोचा चलो इसका इलाज करते हैं, इसे लेके जाते हैं हॉस्पिटल. अब वो तो कंसर्न देने के हालत में नहीं है कि मैं मेरा इलाज करो या मत करो, या मेरे किसी फैमिली मेम्बर्स को कॉल करो या मत करो. उस सिचुएशन में अगर उसकी मौत हो जाती है ना, दैट विल ऑल्सो कम अंडर द सेक्शन 30. means the general exceptions. Section 30. Okay, now section 31. Section 31 talks about the communication made in good faith. जैसे मान लीजिए डॉक्टर है, देयर इज़ अ डॉक्टर, डॉक्टर को पता चला उसका जो पेशेंट है वो कुछ दिनों में मर सकता है. डॉक्टर ने उसे बता दिया उसके फ़ायदे के लिए कि देखिए यू कैन डाई, आप कभी भी मर सकते हैं, आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, यू डोंट हैव दैट मच टाइम, आपको जो भी अपने ज़िंदगी के बचे हुए काम है आप कर लीजिए. ये सुन करके हार्ट अटैक से वो आदमी मर गया संग संग. सो ये आपका आएगा सेक्शन 31 में. इट विल ऑल्सो कम अंडर द जनरल एक्सेप्शंस. अब आ जाइए सेक्शन 32. सेक्शन 32 कहता है डरा कर, धमका कर, थ्रेटन दे करके किसी बात के लिए किसी को कंपेल करना, किसी बात के लिए किसी को कंपेल करना, थ्रेटनिंग दे करके, ये आपका जनरल एक्सेप्शंस में आता है. दिस विल कम अंडर द जनरल एक्सेप्शन. बट ये आपका जनरल एक्सेप्शन में कब नहीं आएगा? व्हेन देयर विल बी द मैटर ऑफ टेररिस्ट, व्हेन देयर विल बी द मैटर ऑफ डकैती, व्हेन देयर विल बी द मैटर ऑफ किल सम पर्सन, किल एनी पर्सन. अगर किसी को मारने के बारे में बोला गया है, थ्रेटन दिया गया है और कहा गया है कि किसी के ग्रुप को ज्वाइन कर लो, डकैती के लिए बोला है ग्रुप को ज्वाइन कर लो वरना तुम्हें सही से रहने नहीं दूंगा, या इस तरह का किसी तरह का धमकी उसे मिला है. अगर उसे थ्रेटनिंग मिला है लेकिन वो थ्रेटनिंग डकैती के लिए मिला है, राजद्रोह के लिए मिला है, आपका टेररिज्म के लिए मिला है और इन सब से डर कर उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, सो इस बार इन दिस प्लेस वो जनरल एक्सेप्शंस में नहीं आएगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी. दिस विल नॉट कम अंडर द सेक्शन 32 ऑफ भारतीय न्याय संहिता. Now section 34 to 44, right of private defense. Section 34 says one thing very clearly, that nothing is an offence which is done in the private defense. Section 35 कहता है कि आप प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो, बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड सेक्शन 37. प्राइवेट डिफेंस आप कर सकते हो कब? सेक्शन 37 बताता है कि आप किसी पर कितना प्राइवेट डिफेंस यूज़ करोगे, कब यूज़ करोगे, किस सिचुएशन में यूज़ करोगे और कब तक यूज़ करोगे. आप
पब्लिक सर्वेंट के ऊपर प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, जब तक आपको ऐसा एप्रीहेंशन है कि उस पब्लिक सर्वेंट के ज़रिए आपकी डेथ हो सकती है, देयर इज़ द मैक्सिमम एप्रीहेंशन ऑफ काउजिंग डेथ, देयर इज़ द मैक्सिमम एप्रीहेंशन ऑफ ग्रेवियस हर्ट, और पब्लिक सर्वेंट ने अपने बॉडी पर यूनिफॉर्म नहीं पहन रखा है, उसने आपको अपना आई कार्ड भी नहीं दिखाया है, उस सिचुएशन में आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। बट पब्लिक सर्वेंट है, उसने अपना यूनिफॉर्म ले रखा है, पहन रखा है, वो आपको अरेस्ट कर रहा है, या किसी भी सिचुएशन में आप किसी भी तरह पर आप उस पर प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पब्लिक सर्वेंट ने आपको टच भी किया तो उस सिचुएशन पे भी आप उस पर प्राइवेट डिफेंस यूज़ नहीं कर सकते। प्राइवेट डिफेंस आप तभी यूज़ कर सकते हैं when you have the maximum apprehension of grievous hurt, maximum apprehension of causing death. Okay, second thing is that कितना यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे। मान लीजिए आपको किसी व्यक्ति ने मारा, ठीक है, आप मार खा गए, आप ज़मीन पर गिर गए और वो व्यक्ति जा रहा है, तो ठीक है, आप मार खा गए, आप ज़मीन पर गिर गए, अब आप वापस से जा करके पीछे से उसको मारते हैं, सो दिस विल नॉट कम अंडर द प्राइवेट डिफेंस। ठीक है, आपको किसी ने मारा, आपने उसके सर पर एक डंडा मारा, वो उस डंडे से बैठ गया, उसकी सेंस उसने लॉस कर दिया कुछ क्षणों के लिए, आप वहाँ से जा सकते हैं या भाग सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। आप ऐसा ना करके उसको इतना पीट रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा उसे ग्रेवियस हर्ट हुआ है या उसकी डेथ हो गई है। सो दिस विल ऑल्सो नॉट कम अंडर द प्राइवेट डिफेंस। तो प्राइवेट डिफेंस हमेशा सेक्शन 35 को याद करके होगा, कब आप कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं। पब्लिक सर्वेंट के ऊपर नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर पब्लिक सर्वेंट कंसील कर रहा है कि वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है, वो ना आपको आईडी दिखा रहा है, वो उसकी बदन पे ना ही यूनिफॉर्म है, और ऐसा एप्रीहेंशन है आपको कि दैट पर्सन कैन काउज योर डेथ, आपको ग्रेवियस हर्ट हो सकता है, आपकी डेथ हो सकती है, तभी आप प्राइवेट डिफेंस यूज़ करते हो। और कितना कर सकते हो, किसी भी व्यक्ति पर कितना कर सकते हो, जितना ज़रूरत है उतना। मार के जा रहा है, पीछे से जाके आपको नहीं मारना है, दैट विल नॉट कम अंडर द प्राइवेट डिफेंस। ओके, अब आइए सेक्शन 36। सेक्शन 36 कहता है अनसाउंड माइंड, डॉली इनकैपेक्स, इन लोगों को मेंसरिया नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो उन सिचुएशन में अगर वे आपको मार सकते हैं तो उस वक्त आप उन पर प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। ओके, नाउ सेक्शन 38। सेक्शन 38 कहता है 7 सिचुएशन है जब आप अपने प्राइवेट डिफेंस में किसी का डेथ भी काउज कर सकते हो। ओके, वो हो सकता है आपका when there is the apprehension of death, when there is the apprehension of rape, when there is the apprehension of grievous hurt, when there is the apprehension of acid attack, when there is the apprehension of gratifying unnatural lust, when there is the apprehension of kidnapping and abduction, when you are in such place where you are confined in such place where you cannot communicate to any person. Okay, in this all 7 condition it has provided that for save yourself you can cause death to any other person in private defense, but in this condition there should be this thing will be available, this 7 condition will be available. Section 38. Now come to the section 41. ये कहता है कि कब आप प्राइवेट डिफेंस में किसी का डेथ काउज कर सकते हो, बट अपने प्रॉपर्टी को बचाने में। इन द मैटर ऑफ प्रॉपर्टी, इन द मैटर ऑफ सेविंग योर प्रॉपर्टी, व्हेन यू कैन काउज द डेथ ऑफ एनी पर्सन। यहाँ सीधी बात है, रॉबरी, मिसchief बाय फायर, देयर इज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, देयर इज द एप्रीहेंशन ऑफ ग्रेवियस हर्ट, डकैती, एटसेट्रा। इन दिस टाइप ऑफ थिंग you can cause death for in your private defense. Okay, so I think you can understand that this all section 14 to 44 will come under the general exceptions, and if any person has committed any offense and this offense is coming under the general exceptions, so they will not get the punishment. Fine. Okay, thank you so much.